السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مفتی صاحب خیریت سے؟ ہاں، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان۔ جی نعمان عرض کر رہا ہوں نوشہرہ سری نگر سے۔ اچھا، فرمائیے۔ حضرت مفتی صاحب کچھ عربی جملوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی تھی جی۔ ہاں فرمائیے فرمائیے۔ حضرت مفتی صاحب بات یہ عرض کرنی تھی کہ اگر دو آدمی آپس میں عربی کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اچھا، اور ایک آدمی اس کے اندر ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایتنی بدلیل واحد تدل، ایتنی بدلیل واحد تدل، اچھا، تو یہاں سے دوسرا جو اس کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ اس پر بعد میں اعتراض کرتا ہے کہ یہ جو تدل ہے یہ جملہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل جملہ ہونا چاہیے تھا یدل۔ ایتنی بدلیل واحد یدل۔ جی، اور اس پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے جو کہا ایتنی بدلیل واحد تدل، یہ تدل ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر یا آنی چاہیے تھی، یہ یدل ہے۔ یعنی مؤنث کا صیغہ نہیں آنا چاہیے جی یا مذکر حاضر کا صیغہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ غائب کا صیغہ آنا چاہیے۔ جی، ٹھیک، تو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے جی؟ اعتراض درست ہے، اور اعتراض کرنے والا صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعتاً صحیح جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایتنی بدلیل واحد یدل جی علی تلک الدعوہ جی یا علی ذلک المدعی۔ جی دلیل واحد، دلیل جو ہے یہ مرجع ہے، اور اس کے لیے جو فعل لانا ہے وہ فعل مذکر لانا ہے، مؤنث نہیں۔ جی اس لیے اعتراض کرنے والا کا اعتراض صحیح ہے، اور بولنے والے کو مان لینا چاہیے کہ میں نے جملہ غلط بولا ہے۔ اچھا 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 جی، جی، اچھا اس کے بعد وہ ایک اور جملہ کہتا ہے، وہ یہ جملہ کہتا ہے یعنی بات ہو رہی ہے لفظ حائز کے بارے میں، اچھا، لفظ حائز کے بارے میں۔ اب لفظ بھی مذکر ہے اور حائز بھی بظاہر یہ مذکر ہے، اور وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ماذا ترید بہا، اور اعتراض کرنے والا اس کو کہتا ہے کہ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے آتی ہے، حالانکہ لفظ بھی مذکر ہے اور حائز بھی مذکر ہے، تو آپ کو ماذا ترید بھی کہنا چاہیے تھا، بہا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ اعتراض درست ہے یا غلط ہے جی؟ لیکن ماذا ترید بہا میں ہر ضمیر کا مرجع کس کو بنا رہے ہیں؟ ہا یعنی بات ہو رہی ہے لفظ کی اور لفظ حائز کی۔ اچھا، لفظ حائز کی بات ہو رہی ہے، جی تو لفظ حائز اپنے ظاہر کے اعتبار سے مذکر ہے، جی اگرچہ یہ مؤنث ہی کے لیے ہمیشہ استعمال ہوگا، جی اور ہر وہ صفت جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو اس صفت کو مذکر لائیں تب بھی مراد مؤنث ہی ہوتی ہے، اور مؤنث لائیں تب بھی مراد مؤنث ہی ہوتی ہے۔ جی اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جب جملہ استعمال فرماتی ہے تو کبھی وہ کہتے ہیں وہ کنت وانا کنت حائضا، جی مذکر کا لفظ استعمال کرتی ہے، جی لیکن جب ہم اس کے لیے ضمیر لائیں گے تو ضمیر مذکر ہی لائیں گے، کیونکہ لفظ تو مذکر ہے۔ جی بالکل۔ یہ اپنی صفت اور اپنے اس وصف کے اعتبار سے جس وصف پر یہ دلالت کرتا ہے وہ وصف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، لفظ تو مذکر ہی ہے، جی اس لیے بالکل۔ اس لفظ کے لیے جب ضمیر لائیں گے تو مذکر ہی ضمیر لائیں گے، لہذا ماذا ترید بہا نہیں ماذا ترید بہی کہنا ہوگا۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والا یہ درست اعتراض کر رہا ہے؟ ہاں ایسا صحیح ہے۔ اچھا جی، جی ایک تیسری بات یہ تھی کہ ایک جملہ وہ آگے سے وہی آدمی کہتا ہے سأجعلک الآن مخدعا، اب اس کو سأجعلک الآن مخدعا، اچھا اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں آپ کو دھوکے باز بناؤں گا، اچھا سأجعلک الآن مخدعا۔ تو یہاں سے اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ تمہیں تو کہنا تھا کہ میں تمہارا دھوکہ پکڑوں گا، یہ سأجعلک الآن مخدعا کا معنی ہے میں تمہیں دھوکے باز بناؤں گا، تو آپ نے جملہ غلط کہا، آپ کو کہنا چاہیے تھا اب میں تمہارا دھوکہ پکڑوں گا۔ تو یہ سأجعلک الآن مخدعا آپ کا کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو کیا یہ اعتراض ٹھیک ہے غلط ہے؟ اجعلک مخدعا، میں تم کو دھوکے باز بناؤں گا، جی یہ تو جملہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو دھوکے باز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جملہ اجعلک الآن مخدعا، جی خادعا کے معنی دھوکہ دینا، جی مخدعا کے معنی کیا ہوں گے؟ مخدعا کا معنی دھوکہ دینے والا۔ دھوکہ دینے والا، میں تمہیں دھوکہ دینے والا بناؤں گا، جی یہ تو جملہ ہی معمر ہو گیا۔ جی 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 ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے والا کیسے بنائے گا؟ جی دھوکہ دینے والا
जो है वो तो खुद अपने इरादे से धोखा देगा, लेकिन दूसरा इंसान इसको धोखा देने वाला नहीं बना सकता। सही अब तो बात। दूसरा इंसान इसको ये कह सकता है कि मैं तुम्हारा धोखेबाज होना साबित करूंगा, जी या मैं तुम्हारे धोखादही का मुआवजा करूंगा, या तुम्हारे धोखादही के तर्ज अमल को वाजे करूंगा, तश्तबाम करूंगा। जी। हाँ, अच्छा, तो ये इसका कहना ठीक नहीं है, इसको उस तरीके से कहना था। तो ये एतराज़ करने वाला का एतराज़ दुरुस्त है। अगर वो उसकी मुराद ये है, वो ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा धोखा वाजे करूंगा, जी जी मैं तुम्हारा धोखा पकड़ूंगा, जी तो उसको जुमला बोलना चाहेगा मैं तुम्हारा खिदा जाहिर करूंगा। जी जी वो जो जुमला वो बोल रहा है वो सही नहीं है। जी जी, बेहतर। अच्छा, अगली बात ये जी मुफ्ती साहब, वो ये कह रहा है अंत मा बि तालिबिन, और माँ भी तालिबी, हाँ, अंत मा बि तालिबिन, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ से यानी उसको ये बताना है कि तो यानी आप तालिब इल्म नहीं हो, और यहाँ से एतराज़ करने वाला ये कह रहा है कि फसी जुमला ये है, आपको कहना चाहिए था मा अंत बि तालिबिन, आप तालिब इल्म नहीं हो। हाँ, आप तालिब इल्म नहीं हो, मा अंत बि तालिबिन। तो फसी जुमला तो यही है, मा- अंत बि तालिबिन। तो ये जो अंत मा बि तालिबिन कहा है, ये फसी जुमला नहीं है, ये ठीक जुमला नहीं है, नहीं है, तो ये एतराज़ दुरुस्त है ना? इतना दोस्त है। अच्छा जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और वो जुमला कहता है यानी दो बातें वो एक साथ कह रहा है। पहले तो कहता है अल आना ज़नन्तु, और उसके साथ ही कहता है कुन्तु अज़ुन्नु। तो अब एतराज़ करने वाला कह रहा है, पहले तो आपने कहा अल आना ज़नन्तु कि अब मैंने यानी अब मैंने गुमान किया, और आगे तो कह रहा है कुन्तु अज़ुन्नु। जब फ़ेल मुज़ारे पर काना दाखिल होता है तो वो माजी इस्तिमरारी के माने में हो जाता है। तो कुन्तु अज़ुन्नु आपने फ़ेले यानी माजी इस्तिमरारी का सिगा लाया, और उसके साथ ही कह रहे हो अल आना ज़नन्तु, तो ये दोनों बातें दुरुस्त एक साथ कैसे हो गई? नहीं होंगे सही। तो एतराज़ करने वाला कौन तो अज़ुन्न में गुमान कर रहा था, जी या उसको कहना अना अज़ुन्नु, जी या अल-आन अज़ुन्नु। जी अल-आन ज़नन्तु माजी का सिगा है, अल-आन हाल का है। बिल्कुल। तो अल-आन हाल और ज़नन्तु माजी का सिगा है, दोनों कैसे जुड़ेंगे? एक तो ये भी बात, और दूसरी और साथ में ला रहा है कुन्तु अज़ुन्नु। कुन्तु अज़ुन्नु जो है वो तो माजी के मुताबिक अगर कहना है किसी को मेरा गुमान ये था, मतलब मुझे कि फर्ज कीजिए आपसे कोई आदमी बात कर रहा है जी और वो कह रहा है कि मैं तो समझता था कि तुम संजीदा आदमी हो, मगर तुम संजीदा नहीं। वो कहता है क्या, कुन्तु अज़ुन्नु अन्नका हलीमन, अन्नका हलीमुन, मैं जी। गुमान कर रहा था, मैं सोचा था तुम बड़े बुर्दबार आदमी हो। जी बोला कि ज़ाहरा ली अन्नका लैसा बिहलीम। जी ये जुमला तो सही बनेगा, लेकिन कुन्तु अज़ुन्नु माजी के सीगा के साथ बोलना है अल-आन ज़नन्तु, ये जुमला सही नहीं है। तो ये एतराज़ करने वाला इसको कहता है कि आपने जुमला ठीक नहीं बोला, तो एतराज़ करने वाला दुरुस्त कह रहा ही नहीं कह रहा? हाँ सही कह रहा है, ऐसा सही है। जी। तो हज़रत ये बात अर्ज़ करनी थी कि ये एक साहब ने ये जुमले कहे थे, उस पर हमने इसी तरीके से मुझे ख्याल आता है किसी ने इन जुमलों के बारे में बात की है। जी 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 बिल्कुल। तो यानी एक साहब ने ऐसे जुमले कहे थे, तो हमने उस पर एतराज़ किया कि आपने जुमले ठीक नहीं कहे, आप इस तरीके से इनको अदा करें, या हमने उन पर एतराज़ किया था कि आपकी अरबी दुरुस्त नहीं है, आप अपनी अरबी दुरुस्त करें। तो उन्होंने आपको फ़ोन किया है, और फिर आपको क्या पता आपकी इत्तला थी या इजाज़त नहीं थी, उन्होंने वो उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया है। अच्छा, हाँ, और बहुत उस ताज्जुब, बहुत अजीब, तो बहुत अजीब है ये तो तो खयानत है, जी ये तो खयानत है। हदीस में तो मौजूद है अल-मजालिसु बिल खैर बिल अमाना, जी कि मजलिस में जो गुफ्तगू हो जाए, जो आपस में दो आदमी जो गुफ्तगू हो जाए वो अमानत है, और अगर उसको फैलाना है तो शायद उससे पहले इजाजत लेनी है। जी तो मतलब ताज्जुब की बात है, हसरत की बात है कि एक आदमी सवालात कर रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ ये सोचकर कि ये अपने सवालात हैं, ये इसके अपने कहीं पढ़े हुए जुमले हैं, और इन जुमलों की तस्सीह करा रहे हैं, और उसके बाद मैं जो जवाब दे रहा हूँ, और तरह तरह की तावीलात, तो तावीलात दर तावीलात, ये दूर अज का तावीलात करके जुमलों को सही कर रहे हैं, और वो सारा ये इसलिए करा रहा है ताकि उसको फैलाए। तो ये बदयानती है, खयानत है ये, और हदीस के खिलाफ है। तो हज़रत उन्होंने ये ख़यानत बदयांती करके उन्होंने आपसे बात की है, और फिर वो आपसे जो कह रहे हैं कि ये तावील करके और इस तरीके से और उस तरीके से दुरुस्त होगा। बहुत बहुत दूर तो तावीलात करते कर रहे, लेकिन मैं उसको यही सोचता रहा ये जुमले कहीं लिखे हुए मौजूद हैं, और जब कहीं जुमला लिखा हुआ मौजूद होता है तो उस वक्त उस जुमले की तस्सीह करनी होती है, बजाय से कि तगरीर करके जुमले को बातिल कर दें। जब लिखा हुआ किसी मुसन्निफ का जुमला होगा कहीं, हर तरह की कोशिश की जाती है ताकि जुमला किसी न किसी तरह से मुंतबिक हो जाए,
किसी न किसी तरह से जुमले के सही मफहूम बन जाए। इसीलिए कुरान करीम में भी कहीं महजूब इबारतें निकाली जाती हैं, कहीं जो है वो माने हकीकी के बजाय माने मजाजी मुराद दिए जाते हैं तफसीर करने की गरज से। लेकिन अगर ये गुफ्तगू दो आदमियों के दरमियान हुई है और जी उसको चाहिए था ये क्या कि जी मेरी गुफ्तगू हुई, किसी ने मेरी इस गुफ्तगू पर तो एतराज किए, एतराज करने वाले के एतराज सही है या मेरा ये जुमला सही है, ये सब बताया नहीं, ये कोई सारा पस मंजर बताया नहीं और कह रहा है कि ये जुमला इस तरह से अगर बोला जाए तो सही हो जाएगा या नहीं, मैंने इस तावील के साथ बोला जाएगा तो सही हो जाएगा। और वो तावीलात बाज़ दफा बहुत दूर दराज की तावीलात करनी पड़ती है आज इसलिए ताकि इबारत की तफसीर हो जाए। जी लेकिन अगर उसने ये कहा होता कि साहब मेरी किसी के साथ गुफ्तगू हुई है, उसमें एक ने ये जुमले बोले हैं, दूसरे ने एतराज किया है जुमला तुम्हारा सही नहीं है, अब ये एतराज जिस पर हुआ है वो जवाब कह रहा है कि हम इस तरह की तावीलात के बाद इन जुमलों को सही करेंगे, इसके बजाय उसको कह देना चाहिए कि जी हाँ मैंने जुमला गलत बोला, इसमें हर्ज क्या है। और जो आदमी इस तरह के जुमले बोल रहा है ये वाज़ेह है कि बेचारा वो अरबी ठीक तरह से बोलने पर कादिर नहीं है। अब अगर किसी ने जुमला बोला और वो जुमला गलत बोला और किसी ने उसकी गलती पकड़ी तो उसको चाहिए ये कहना कि साहब मैं आपने गलती पकड़ी, वाकई मेरा जुमला गलत है, गलती को तस्लीम कर लेना भी हकीकत पसंद भी है। और अगर कोई आदमी गलती करने वाले गलती तस्लीम करता तो हर दर भी है जी फिर तावीलात के जरिए से अपने जुमलों को सही करने की कोशिश, ये बात दफा एक झूठ को ठीक करते करते 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। जी। तो वो इस वक्त आपकी वो बात लेकर, आपकी रिकॉर्डिंग लेकर के आवाम के अंदर तासुब दे रहे हैं कि अब ये खयानत है जी खयानत है ये कि जब मैं उनके जुमले सुन रहा हूँ और वो कह रहे हैं अगर ये जुमले से इस तरह ताबीर की जाए फिर इसका मफहूम सही बनेगा या नहीं। मुझे याद आता उसने ये भी कहा था कि एक जुमला है अंता इमरातुन, मैंने कहा तो अंता इमरातुन कैसे हो सकता है, अंत मुज़क्कर का सीगा है, इमरातुन मुअन्नस है, ये मुब्तदा खबर कैसे बनेगी। उसने कहा जी अगर इसको हम यूं कहेंगे अंता का इमरातिन तो उसको तुम काफ जो है वो महसूस माना जाए और काफ को हज़फ कर दिया जाए तो तेज गुफ्तगू में इस तरह की तावीलात की बुनियाद पर अपने गलत जुमलों को सही करना सही नहीं। अब इसके बाद फिर ये कि इसको फैलाया गया और उसको सोशल मीडिया पर डाला गया, ये तो बारह मैं कह चुका पहले, ये तो हदीस के भी खिलाफ है और बदयानती है। और हमको कहना चाहिए कि जी मैं आपसे कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस गुफ्तगू की मुझे जरूरत इस वजह से पड़ी है और मेरी किसी के साथ बातचीत हुई है, उसमें किसी ने जुमले बोले हैं, दूसरे आदमी ने उसकी तकलीद की है और तकलीद करने के बाद फिर उन जुमलों को बताया गया कि ये गलत है। अब बताइए आप सही किसका है, एक बात। दूसरी बात गुफ्तगू दो आदमियों के दरमियान हो रही है तो आवाम को सुनाने की क्या जरूरत है, आप सही बोल रहे हैं अरबी गलत बोल रहे हैं, मतलब ये दो आदमी गुफ्तगू हो रही है और अरबी में बोल रहे हैं, एक कहता है तुम्हारा ये जुमला गलत है, वो कहता है मेरा ये जुमला सही है, ये दो आदमियों की गुफ्तगू आवाम को सुनाने की क्या जरूरत है। जी जी मतलब आवाम को इंतशार में डालने और आवाम के सामने ये अपना मजाक उड़वाने की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल। और ये यानी कि ये तो एक किस्म की हमाकत है। बिल्कुल जी। उन्होंने वो अरबी गुफ्तगू जो है थोड़ी सी उन्होंने वो आवाम के अंदर डाली थी और ये तासुर देने की कोशिश की थी, उनकी तरफ से उन्होंने डाली थी और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि हमें अरबी आती है और इन हजरात को नहीं आती। बहुत अच्छा, मतलब जो उनके सही अरबी माहिर जानने वाले हैं जी जी बिल्कुल 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 जी। तो हमने उसके बाद चूंकि उन्होंने वो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया था तो उस प्रोपेगेंडे की हकीकत खोलने के लिए हम मजबूर हो गए और हमने मजबूर होकर सोशल मीडिया पर उसकी अरबी पर एतराज़ किया कि इसकी अरबी तो गलत है, आप किस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने आपके साथ गुफ्तगू करके बगैर आपकी इजाज़त की ख़यानत करके उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया और वह दूर अंदाज तावीलात आपके सामने रख कर तफसील ले करके वो फैलाना शुरू कर दिया कि जी नोमान ने एतराज़ किया है, हालांकि इनके मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जुमले ठीक हैं। तो अब नोमान के एतराज़ ठीक है, मुफ्ती साहब की बात ठीक है। तो हमने लोगों को समझाया कि भाई मेरे एतराज़ बिल्कुल ठीक हैं और मुफ्ती साहब से जो बात की जा रही है वो मुफ्ती साहब को हकीकत हाल नहीं बता रहे और मुफ्ती साहब के सामने कह रहे हैं कि जी तावील करके तो किसी भी गलत जुमले को दुरुस्त किया जा सकता है। फिल हकीकत जो एतराज़ हैं आप मुफ्ती साहब के सामने पूरी सूरत हाल रखें। जरूरत ही वहाँ पड़ती है कि जहाँ जुमला अपने जाहिर के एतराज़ से सही नहीं है जी, तभी तावील करने की बात हो। तावील खुद दलील होती है कि जुमले के अंदर कोई नक्स है। तो इस वजह से अब चूँकि तमाम आदमी समझने की सलाहियत नहीं रखते तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप ही के साथ गुफ्तगू कर लूँ ताकि आप ही इसके बारे में हकीकत वाज़े कर दें तो हम इंशाल्लाह उसके बाद दिखा दें। तो क्या मुफ्ती साहब इजाज़त है कि हम ये बात जो है उनके सामने रख दें और सोशल मीडिया पर डाल करके कह दें कि जी मुफ्ती साहब ने इसकी हकीकत वाज़े कर दी है। मैं अर्ज़ करता हूँ मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता इस तरह की ये बातें सोशल मीडिया पर आएँ जी
यहाँ तो इतने बड़े बड़े मसाइल उम्मत के सामने हैं जी जहाँ उम्मत के ईमान और कुफ्र के मसले हैं, जी जहाँ उम्मत के मौत और हया के मसाइल हैं, जी वहाँ इस तरह की इन छोटी बातों को सोशल मीडिया पर डाल करके हम अपना और अपने उलमा का और अपने दीनी काम करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। जी इसलिए ये चीज नहीं होना चाहिए। जी और जो आदमी भी इस तरह की गलतियां ये हरकतें कर रहा है वो नादानियों में का शिकार है जी कि वो किस चीज का काश इसके बजाय दीन के उन बुनियादी चीजों का तस्करा होता जिसकी इस वक्त उम्मत को जरूरत है और जी हर तबके को जरूरत है। जी लेकिन अब जब वो उसको ला चुके हैं अवाम में और अवाम में ला करके एक किस्म का इंतशार पैदा करा दिया है, तो वजाहत करने के लिए वरना बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए और न इसकी तबीयतें आमादा होनी चाहिए इस बात के लिए, और सिर्फ वजाहत करने के लिए अब तो उन तक उनको पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं। चलिए जी, जज़ाकल्लाह। तो हम इंशाल्लाह उनके सामने बात रखेंगे कि जो हमने एतराज़ किए थे वो एतराज़ दुरुस्त थे, और मुफ्ती साहब से जो तस्वीर ली गई थी वो दूर अंदाज तावीलात की बुनियाद पर मुफ्ती साहब ने कहा था कि इन जुमलों में तावील कर करके इनको दुरुस्त किया जा सकता है। यही इस बात की दलील है कि ये जुमले अपने ज़ाहिर के एतबार से दुरुस्त नहीं हैं, और उसकी वजाहत मुफ्ती साहब ने कर दी है। बेहतर, ठीक है जी चलिए, जज़ाकल्लाह, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।